بلال سونا نہیں؟ تم نے امی کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ شادی شدہ ہیں؟ جی ہاں۔ کیا کرتے ہیں ان کے میاں؟ خالہ کچھ تو کرتے ہوں گے، انہیں سے جو چائے وغیرہ لے کے آؤ۔ السلام علیکم۔ یہ صدیوں کے بعد کہاں سے تشریف آوری ہو رہی ہے آپ کی؟ میں صدقے میں واری اسد میاں، آؤ ادھر بیٹھو میرے پاس۔ بس خالہ ذرا جلدی میں ہوں بھئی، آپ سب لوگوں کے لیے ایک بہت زبردست خبر ہے۔ اگلے ہفتے خاور ہمارے درمیان میں ہوگا۔ سچ؟ جی ہاں واقعی۔ اللہ خیر سے لے کے آئے۔ خیر سے خاور میاں آ رہے ہیں؟ انہوں نے مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ ابھی اس کا بھی مجھے فون آیا تھا اور اس نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ آپ لوگوں کو بالکل نہ بتاؤں۔ وہ ایکچولی وہ خود آپ لوگوں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن آپ لوگوں کی پریشانی دیکھ کے نا میں نے سوچا کہ نہیں، آپ لوگوں کو بتا دینا چاہیے۔ سب ویسے ہی آپ لوگوں کو بہت پریشان کیا ہوا، اگر اب سے آپ لوگوں کے چہرے پہ میں خوشی دیکھتا۔ آپا اس بات پر تو دعوت ہونی چاہیے ہم سب کی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ تو ہر بھابھی میں جھوٹ بولوں گا کیا؟ اچھا کیا آپ نے کہ آپ خود ہی وہاں سے اٹھ کر آ گئے۔ آپ وہاں پر بالکل مس فٹ تھی۔ جب ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ آپ ہم سے ملتی ہیں یا نہیں، تو پھر آپ کیوں تکلیف کرتی ہیں؟ دیکھیں، آپ ہی کے میاں آنے والے ہیں اور ہم ان کو یہ نہیں بتانا چاہتے کہ ہمارے باپ کی کوئی تازہ ترین نمبر 2 بیوی ہے۔ نمبر 2 بیوی، واہ کیا خوب کہا میں نے۔ بس آئندہ کبھی بھی آپ یہاں بلال، بدتمیز۔ انعام بچہ ہے، سمجھ جائے گا۔ یہ سب کچھ تمہارا کیا دھرا ہے، میں تمہیں جانتا نہیں۔ پڑا میرے آگے سے۔ نور باجی ٹھیک کہہ رہی ہے نام صاحب، پلیز۔ آپ کو بڑا شوق ہے نا ہمارے گھرانے سے مراسم بڑھانے کا، لیکن یہ کسی کے کام نہیں آنے والے شکیلہ بیگم، تم نے یہ جرات کیسے کی کہ تم ان کی توہین کرو؟ بچہ ہے، نہ سمجھ، غلطی ہو گئی۔ غلطی آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ کیوں؟ میں اس کو وہ سزا دوں گا، اس کو یوز کرنے والی پناہ مانگوں گی، معافی مانگو ان سے۔ یہ تمہاری امی ہے۔ مجھے معافی نہیں چاہیے، اور بلال نے مجھ سے کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ ہٹو میرے آگے سے۔ نور باجی پلیز، آپ بلال کو یہاں سے لے جائیے۔ جی نہیں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، چاہے تو مجھے جو مرضی سے کرو۔ آپ میری امی نہیں ہیں۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے، اور میری قسم اگر آپ نے بلال کو کچھ کہا تو میں اس کو آگ کر دوں گا، یہ نواب زادہ۔ یہ آج بھی ہمارا بیٹا ہے اور کل بھی ہمارا بیٹا ہی رہے گا۔ بچہ ہے، آپ کیوں اس کے لیول پر آتے ہیں؟ معاف کر دیں، سمجھ آ گئی تو۔ تم بھی چھپ چھپ کے ان سے ملتی رہی اور ان جیسی ہو گئی۔ تمہیں اگر ان کے مفادات عزیز ہیں، ان سے ہمدردی ہے، تو ان کے ساتھ رہو۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ ان سے مت ملنا، لیکن تم ملتی رہی۔ اور اگر یہ لوگ تمہیں نہ رکھیں، اپنے باپ کے گھر چلے جانا۔ شکیلہ تم گھبراؤ نہیں، یہ سراسر بلال کی بے وقوفی ہے، ہم تمہیں کچھ کھونے نہیں دیں گے۔ نور باجی، انہوں نے آج تک مجھے تم نہیں کہا، اور آج
یہ ان کی وقتی جذباتیت ہے. وہ تمہیں بہت پیار اور تمہارا بہت احترام کرتے ہیں. باجی میرے تو والد بھی بہت سخت طبیعت ہے. اور اب انعام صاحب میں کہاں جاؤں گی؟ تم پریشان مت ہو، ہم تمہیں کچھ کھونے نہیں دیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا. سب بھائی I'm really very sorry, اسد بھائی. بھابھی میں خاور کے گھر کو اپنا ہی گھر سمجھتا ہوں، لیکن آپ نے مجھے کبھی انکل کی دوسری شادی کے بارے میں نہیں بتایا. یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ میں بتاتی، اور ویسے بھی خاور کیا سوچیں گے جب انہیں پتہ چلے گا. کم آن بھابھی، اب وہی قبل از مسیح کی باتیں. اب تو پہلی دوسری تیسری شادی کوئی شرمندگی کا باعث نہیں ہوتی. کیا اسی وجہ سے آنٹی انکل سے علیحدہ رہتی تھی؟ نہیں، جب یہ نہیں تھی تب بھی میرے والدین اسی طرح ایک دوسرے سے دور تھے. ایسی بچوں نے اس معاملے کو سمجھنے کی بہت کوشش کی، لیکن ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنے والدین کو اسی طرح دیکھا. بٹ اسٹل ویری سوری بھائی، I'm sorry. آپا اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. ایمان سے باری بھابھی سو رہی ہیں، بڑی مشکل سے سلائے. انیلا پہلا بھی ابھی تک اسکول سے نہیں آئی، ورنہ تم بھی سو لیتی، رات بھر جاگتی رہی ہو. خدا کے لیے آپا مجھے غلط نہ سمجھے. ماشاءاللہ تم حسین ہو، اسمارٹ ہو، اچھی گفتگو کر لیتی ہو. مجھ جیسے بندے کا کیا ہے دنیا میں. ہاں یوں نہ کہیں آپا، وہ محض اتفاق. تم نے جانتی نہیں لی مجھے اپنے آپ سے کس قدر اکتاہٹ، کس قدر نفرت ہونے لگی. مجھ جیسے بندے کی زندگی کا کیا جواز ہوتا ہے. آپا میں خودکشی حرام نہ ہوتی نا تو میں. آپا یوں نہ کہیں آپا، تو ہماری اتنی پیاری شکیلا آپا کے بعد آپ ہی تو ہیں. یقین جانے آپا میں نے جان بوجھ کے کوشش. تمہارا راضی سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں، مجھے نہیں پتا. مجھے بس اتنا پتا ہے کہ ماں جی اور ابا جی کی خوشی میرے لیے مقدم ہے. فیصلہ تو وہی کریں گے. آپ پلیز آپ مجھے میں آپ کو کبھی فریب. اب تو مجھ سے لاکھ درجے بہتر ہے. یقین جانے اگر اب کوئی ایسی بات ہوئی تو میں کسی کے سامنے نہیں آؤں گی. تجھ میں ایک قدرتی کشش ہے میری نکی، اور یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. میں نے عہد کر لیا آپا، عہد کر لیا کہ میں شادی نہیں کروں گی. راضی کی وجہ سے؟ نہیں آپا، وہ محض میرے لیے اجنبی ہے. اس کی خواہشوں کا میں کیا کروں. آپا اچھا کہ ان کانوں سے گزر جائے تو. اچھا کہ کبھی کبھی کانوں میں گھر بھی کر لیتا ہے. نہیں آپا، میں نے ماں جی سے کہہ دیے کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گی.
تو آنے والے ہیں جی، لیکن آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کون ہیں. ارے بھائی ہم بھی انعام صاحب کے کچھ لگتے ہیں، آپ جائیں اپنا کام کریں. سبیلا کو اس لیے وہاں نہیں چھوڑا گیا کہ آپ خالی جگہ پر کرنے چلے آئیں. نہ میری ایسی کوئی خواہش ہے نہ ارادہ. تشریف آوری کی وجہ؟ ہرے بھرے کھیت کی کٹائی کے لیے گھاس پھوس کو کٹنا ہی ہوتا ہے، لیکن گھاس پھوس کے ساتھ کوئی اپنے ہرے بھرے کھیت نہیں نوچتا. نہ میرے فیصلے ضروری نہیں کہ درست ہو. کسی مظلوم کو وابستگی کا خواب دکھایا ہے تو اسے کیا مطلب؟ حیرت ہے کہ آپ کو اتنی ہمدردی. وہ سوتن ہے آپ کی. کم عمر ہے، اس کی معصومیت سے مت کھیلیے. میں نہیں چاہتی کہ مکافات عمل میں منزہ اور بلال بھی سفر کرے. یہ عذاب اس پر ہماری وجہ سے آیا ہے. وہ رو رو کر اپنی جان دے دے گی. ویسے بھی ان دنوں آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ اس کا خیال کریں. خدا نخواستہ اس کو اگر تم ہمیشہ مجھے شکست سے دو چار لیکن مجھے تم سے شدید نہ. میں جانتی ہوں کہ میں کبھی بھی آپ کو اپنا نہیں بنا سکوں گی، کبھی نہیں. چلیے چل کر اسے لے آئیے. چلیے اٹھیے. میں جانتی ہوں کہ میری اور میرے بچوں کی عافیت اسی میں ہے کہ ہم اس کی آپ کو اپنے بچوں کا واسطہ. اٹھیے ورنہ اس کے اندر تنی ہوئی ننھی منی کمان بھی ٹوٹ جائے گی. It is always I am. چلیے شکیلا، انعام باہر گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں. سچ نو باجی؟ واقعی امی؟ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ غصہ اتر ہی جاتا ہے اگر نصیب اچھا ہو تو. اٹھو اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کرو. باجی اور آئندہ کے لیے سبق سیکھو کہ ہماری طرفداری نہ کرنا، ورنہ تم بھی کچھ کھو بیٹھو گی. میں بھی تمہاری کچھ ہوں. نور باجی کی تمام ہدایات اپنی جگہ. اگر کبھی میری ضرورت پڑے تو ویسے باری بھابھی شادی کے بعد زیادہ خوبصورت نہیں ہو گئی؟ ارے نہ تنگ کرو نا بھابھی کو. دیکھو تم لوگ مجھے بھابھی مت کہو، آپ ہی ٹھیک ہے. میں تم لوگ کی بہن بھی تو ہوں. ایک مدت کے بعد ہماری حسرت پوری ہوئی ہے. بیلو، تمہارے بھائی نے مجھے اس قدر خوار کیا ہے، اتنا ذلیل. لیکن آپ بھی اب سب ٹھیک ہو جائے گا نا انشاءاللہ. ارے بیٹا تمہارے ابا آنے والے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ تم آ گئے. دیکھو بیٹی، جب تک میں تمہیں باہر نہ بلاؤں
तुम अपने खालू के सामने ना आना। सफिया! आ गई जी, आ गई। तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी? आ गई। बैठो। ये बताओ, सामने वालों को इनकार किया कि नहीं? हुक्म तो आप ही का चलता है। ठीक है, ठीक है, मैं भी ऑस्ट्रेलिया वालों को इनकार कराया हूं। देखो ना, नबीला की बजाय नायरा को मांग रहे हैं। बेटियां ब्याहनी है या नहीं? क्या? यानी तुम्हें मुझसे ज्यादा फिक्र है लड़कियों की? तुम्हें समझ नहीं आएगी। भाई शादियां करूंगा मैं बच्चियों की, मगर अपनी शराइत पर, और शादियां बारी से होंगी। फिर तो रहेंगी सब कमारी, सब की सब। तुम तो हो उल्टी सोच की औरत। शकीला की शादी कामयाब नहीं? मजबूरी का नाम शुक्रिया। अच्छा अच्छा, बहरहाल शादियां तो बारी से होंगी। पहले नबीला, और कल शाम को कुछ लोग नबीला को देखते आ रहे हैं। या अल्लाह करे। तुम खाने का इंतजाम कर देना है? भाई बड़े अच्छे लोग हैं, ऐश करेगी हमारी नबीला। शेख साहब, आप क्या इंसान? बस ऐसा ही है। यानी सारा दिन दफ्तर में बेटियों के रिश्ते ढूंढने के अलावा आपको कोई काम नहीं? यानी 6 बेटियों की मां अगर बेपरवाह, गैर जिम्मेदार और जाहिल हो, तो फिर बाप को तो कहीं आने जाने तो देते नहीं। ऐसे रिश्ते थोड़े ही मिलते हैं। रिश्ते क्या बेहयाई से मिलते हैं? आजकल तो जमाना बेहया हो गया है, लिहाजा शेख रहीमुद्दीन भी बेहया हो जाए। तो आपका मिजाज सिर्फ रिश्तेदार नहीं, पूरा शहर नाना है आपके मिजाज से। आप तो फैमिली से भी आउट। बहुत बकबक कर रही हो आज तुम, बहुत बकबक कर रही हो। और एक तो तुम्हारा बेहया बेटा, ऐसे लड़के की बहनों को रिश्ते, इनको नाम मत लीजिए एहसन का, इसका नाम बिल्कुल मत लीजिए। उसने जो कुछ किया है उसकी जिम्मेदारी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, पहले जमाने में बीवियां मर भी जाया करती थी। एक आपकी बेइज्जती देखिए, न पूछा कि रिश्ता कहां से आया है, न पूछा कौन लोग हैं। क्या पूछती, क्या पूछती? फैसला तो कर। मैंने गलत फैसला नहीं किया, मजादार लोग हैं। लड़का बहुत तालीम याफ्ता है, बाहर से पढ़कर आया है, और शहर के टॉप बिजनेसमैनों में शुमार होता है इनका। नौ दौलतिये नहीं, छानबीन कर लिया मैंने। अच्छा, तो ये बात, तो फिर वो अपने हम पल्ला लोगों से क्यों नहीं रिश्ता कर लेते? कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि बेटी के नसीब भी मां की तरह खराब हो। कल वो लोग आ रहे हैं, और बस बस सारा तैयार कर देना। समझ लिया? एक आपकी बेइज्जती देखिए, न पूछा कि रिश्ता कहां से आया है, न पूछा कौन लोग हैं। क्या पूछती, क्या पूछती? फैसला तो कर। मैंने गलत फैसला नहीं किया, मजादार लोग हैं। लड़का बहुत तालीम याफ्ता है, बाहर से पढ़कर आया है, और शहर के टॉप बिजनेसमैनों में शुमार होता है इनका। नौ दौलतिये नहीं, छानबीन कर लिया मैंने। अच्छा, तो ये बात, तो फिर वो अपने हम पल्ला लोगों से क्यों नहीं रिश्ता कर लेते? कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि बेटी के नसीब भी मां की तरह खराब हो। कल वो लोग आ रहे हैं, और बस बस
यहाँ आकर मेरे सर से जैसे मनो बोझ उतरा है, वरना मुझ पर तो वो ये बुसत आई थी कि वारी आपा हमारे तो सारे के सारे चाव भाई की शादी की हसरतों में रह गए। सोचा था भाई की शादी पे ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। जाकर अपने भाई से गिला करो जिसने ये जुल्म किया। है भाभी, भाई तो जालिम हो ही नहीं सकते, वो तो इतने अच्छे हैं। तुम्हें क्या पता नायला, तुमने जरूर उनका नाम मेरे सामने लेना है। आखिर मैं तुम लोगों की बहन भी तो हूँ। तौबा है, तुम्हारे बाप ने भी सारी उम्र इमरजेंसी ही डाले रखी। क्यों, अब क्या हो गया माँ जी? है तो है। कुछ लोग आ रहे हैं नबीला को देखने के लिए। ओह नो, सच? क्यों? ओह नो, क्यों? तुम्हारे बाप ने लड़के का ऐसा नक्शा खींचा कि मैं कोई एतराज कर ही नहीं सकी। तो वो आज शाम ही आ रहे हैं। तुम लोग उठो, खुद भी तैयार हो और खाने पीने का भी बंदोबस्त करो। अरे बिल्लो आपा, वारी आपा, आप लोग बैठो ना, मैं सारे काम कर लूंगी, सब संभाल लूंगी। बैठो ना। शाबाश, तुम आराम करो। अभी अहमर आता है तो तुम पीसीओ जाकर अपनी माँ को फोन कराना। हमारे यहाँ तो फोन ही नहीं है। दरअसल अब्बा जान को हम पर एतबार ही नहीं। बको मत तुम लोग, तुम्हारे अब्बा जान ने ठीक सोचा है। टेलीफोन एक ऐसा आला है जो जवान बच्चों के किरदार पर चिप पड़ने के इम्कान को बढ़ा देता है। शाबाश, तुम जाकर फोन करा ना बेटी। मुझे कोई फोन वो नहीं करना खाला जान, जिससे मैं खांसी हो गई। सफिया जी भाई, मैंने लेटे लेटे सोचा कि अहमद शायद लेट आए। पैसे दो, मैं बाजार से सौदा ले आऊं। और ये लड़की कौन है? शायद हमसायों की। ओह, बहुत खूब। तो सरदार मोहब्ब अली और उसकी बेगम ने तुम्हें सफारतकारी के लिए भेजा है। शेख साहब, हिम्मत की बात है जो तुमने इस घर में कदम रखा, जुर्रत की बात है। मगर बीबी ये बात समझ लो कि ये शेख रहीमुद्दीन का घर है, किसी सरदार का नहीं। कि पग ऊंची और हरकतें घटिया। और बीबी एक बात और सुन लो, मेरी जो बच्चियां हैं ना, चबलू की तरह पाक, तुम्हारा उन्हें छूना भी। शेख साहब प्लीज खालूजा। मैं उस नाअंजार का नाम भी अपनी जबान पर नहीं लाना चाहता, और उसके साथ वाबस्ता किसी चीज को देखने का रवादार भी नहीं हूं मैं। मेरा भी कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। चाहे तो आप ही निकाल दीजिए मुझे, लेकिन मैं किसी सूरत। प्लीज शाहबाज, शेख साहब मेहमान आने वाले हैं। ये मामला फिर किसी वक्त के लिए उठा के रख लीजिए। हिसाब किताब फिर कर लीजिएगा। मुझे बंदोबस्त करना है, आप जाइए। ठीक है, ठीक है। तुम ऐसा करो, तुम सौदा अहमद से ही मंगवा लेना, मैं चलता हूँ। आओ बेटी, मेरे पास बैठो शाबाश। हाँ। बेटी, एक माँ गैरत का सबसे बड़ा उन्वान होती है। समझ में नहीं आता आयशा को क्या हो गया है। मेरी बहन ऐसी तो नहीं थी। माँ, एक जिम्मेदार माँ जब तमाम हालात का मुकाबला करती है तो इसलिए करती है कि औलाद की जायज ख्वाहिश। देखो बेटी, औलाद की खुशी हर चीज पर मुकद्दम होती है। मेरी जिंदगी में कई दफा ऐसे मरहले आए कि मैं और शेख साहब गैर होते होते रह गए। तलाक एक गाली का नाम, गाली है, और गाली याफ्ता माँ रहमत नहीं, ज़हमत बन जाती है। इसीलिए जायज होते हुए भी अल्लाह मियाँ को तलाक नापसंद। मेरा एहसन इतना बुरा तो नहीं है बेटी। उसने तुम्हें जो जो दुख, दर्द, अजियत
पहुंचाई। दरअसल वो सब कुछ मेरे वजूद से पहुंचे और उसका तावान भी मैं ही दूंगी। तावान? हाँ बेटी, हम जो जिंदा है जिंदगी भर जिंदा रहने का तावान देते रहते हैं। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ खाला जान, लेकिन एहसन के हवाले से नहीं। मेरी बच्ची, ये लोग फिर मुझे देखने के लिए आ रहे, उनकी नजर फिर तुम पर पड़ेगी और फिर लो आपा, प्लीज मुझे मेरी निकाह में जलील ना कीजिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। तो मेरा कसूर है? अब्बा जान क्यों तुम्हारी शादी पहले? लो आपा, एक मेरी बात सुन ले, मैंने नहीं शादी करनी, कभी कभी भी नहीं। आई सी, राजी का रिश्ता? नहीं, प्लीज मिलो आपा, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। मेरी जिंदगी भी आपके किसी काम आ जाए तो? नसीब और हुस्न अपने इख्तियार में तो नहीं होता। अनीला, बेला, क्या कर रहे हो तुम लोग भाई? जी अम्मा। बेटा वो कबाबों का कीमा तैयार रखा हुआ है, बना लेना कबाब, और सलाद का सामान भी रखा हुआ है, और अब थोड़ी सी खीर। हाँ ठीक है। नाइला, जरा मेरी बात सुनना। देखो बेटी, मेरी बात सुनकर दिल में कोई मैल ना लाना। जी, तुम और अनीला मेहमानों के सामने आने की कोशिश ना करना। जी माँ जी, मैं समझती हूँ। और दुआ करो नबीला का मामला खैरियत से निपट जाए, फिर तुम्हारे अब्बा दोबारा राजी के मामले में गौर करेंगे। मैं सब ठीक कर लूंगी बेटा, सब ठीक कर लूंगी। जी ठीक है माँ जी, आप फिक्र ना करें। क्या पूछ रही थी अम्मा? कुछ नहीं। तुम्हारे बड़े राज़ो न्याज होते हैं वैसे अम्मा के साथ। जनाब जी, आज तो फिर फाइनल हो रहे हैं आपके। बकौलिया नीला, मुझे हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं लगता। ओए 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 ओए, अभी से इतना गुस्सा? चुपचाप काम करो, आपा को तंग नहीं करो। मैं तंग तो नहीं कर रही हूँ भाई, छेड़ रही हूँ आपा को। ये वारी आपा कहाँ गई? वारी भाभी बोलो। उन्होंने सख्ती से मना कर दिया भाई, जाहिर है एहसन भाई के साथ तो नहीं आएंगे वो, और ना ही हम लोग उनको रुखसती गिरा के लाए। पता नहीं क्या बनेगा एहसन भाई का और शेवार आपा का। जब मामला अपने कंट्रोल में ना रहे या ना हो तो सब कुछ अल्लाह ताला पर छोड़ देना चाहिए। आज के मामला तो आपके कंट्रोल में है बिलो आपा, मैं सब संभाल लूंगी। बिलो आपा, अब मैं हाथ धोकर तैयार हो जाए और कपड़े भी बदल लें। कपड़े बदलने से तकदीर बदल जाएगी। आपा, शकीला आपा होती तो, और एहसन भाई? एहसन भाई की तो नुमाइंदा मौजूद है, वारी भाभी माने या ना माने। अलबत्ता मैं शकीला आपा की वजह से बड़ी परेशान हूँ, खुदा करे वो ठीक हो। माँ जी तो मुझे कराची भेजना चाह रही थी,
लेकिन मैंने नबीला आपा का इंशाल्लाह ताला आज मामला फिट हो जाएगा और फिर तो आप ही को कराची जाना पड़ेगा। बेवकूफ, चटमंगनी पटबिया थोड़ी होते हैं। देखो अल्लाह सब अच्छा करेगा। नीली आपा, फिर तो आपकी बारी आ जाएगी। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। पता नहीं शकीला आपा की तरफ से धड़का सा क्यों लगा रहता है। ये अमर गधे को कहा था शकीला आपा को फोन करे। ये पास ही तो पीसीओ है। देखो बिलाल, शकीला की तबीयत ठीक नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता उसे कुछ हुआ ना तो तुम अपने बाप के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हो। वैसे भी इन सारे किस्से में शकीला का कोई कसूर नहीं है। तुम अभी उसे फोन करो और उससे माफी मांगो। किस खुशी में? वो लगती क्या है हमारी? अदब तमीज इंसानी जिंदगी का हिस्सा है। कोई अजनबी भी होना तो हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। वो तो फिर भी तुम्हारे बाप की मनखुआ हैं। तुम पहले उससे अपोलोजाइज करो, फिर अपने अब्बू से। बिल्लू, तुम सुन नहीं रहे अम्मी क्या कह रही हैं? अम्मी, मुझे हर उस चीज से चिढ़ है जो आपके दुख का बायस बने। तुम्हें किसने कहा कि वो मेरे दुख का बायस बनी हुई है? मैं तो बहुत मुतमईन हूं कि उसने तुम्हारे बाप की बिखरी जिंदगी को समेट लिया है। इनाम की बिखरी कुर्सियों को उसने अम्मी, फॉर गॉड सेक, आप गम प्रूफ हैं क्या? तुम्हें ये सब समझने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने बच्चों में बहुत मगन हूं। मुनज़्ज़ा, बेटा तुम ही इसे कुछ समझाओ। मैं क्या समझाऊं उसे? अम्मी, एक तो आपने भी आज तक कोई बात वाज़े तौर पर, और सच्ची बात यह है कि आपकी और अब्बू की जो रिलेशनशिप है इसे हम कम से कम आज तक नहीं समझ सके। तुम्हें ये सब समझने की जरूरत भी नहीं है। चलो, नमाज का वक्त हो रहा है। मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, तुम भी नमाज पढ़ लो। आका, कैसे लोग हैं? लोग तो सभी अच्छे होते हैं, बस हम ही रह से जाते हैं। और फिर बिटंगी सी तो। बिल्लू आपा, यू आर ब्यूटीफुल। आप में अपना ही लभाव है। ये लोग ही होची हो गए। कदर ही नहीं जानते। शेवार आपा बता रही थी कि हंसी महजब है ये लोग। देखो, जो अल्लाह की मर्जी। बिल्लू आपा, खुदरेमों में मुब्तला होने की ना वजह है ना जरूरत। अपने आप पर तरस खाना ऐसे ही जैसे। नहीं, मुझे अपने आप पर तरस तो नहीं आता, गुस्सा आता है, नफरत सी होने लगी है मुझे अपने आप से। तौबा आपा, आप तो बस, अब सब मामला ठीक हो गया है ना इंशाल्लाह। देखो, मुझे इतनी भी फुर्सत नहीं कि जाकर जरा मेहमानों को ही देखा हूं। थैंक यू, आई लव यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। सिर्फ आप ही मिसिंग थी। गलबन आपका नाम नाइला है? हाँ जी, मैं। आप तो बहुत सिंपल हैं। क्या आपको हमारी रिसेप्शन से कोई दिलचस्पी नहीं थी? मैं मजाक कर रही थी। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं जरा किचन में मसरूफ थी। सेंट्रल। हाँ जी, मैं इनकी सही बहन हूँ, लेकिन बड़ी सुस्तुल वजूद, काहिल टाइप।
माशाल्लाह सारी बहनें बहुत समझदार और बहुत हसीन हैं माशाल्लाह। मैं ज़रा वॉशरूम गई थी, इधर नज़र पड़ी तो इधर आ गई। माज़रत चाहती हूँ। आपा, अब इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। मैं तो नहीं गई थी उनके सामने, मैंने तो। अल्लाह करे तू जो चाहती है वो हो जाए, तेरी आंखों से ख्वाब निकलकर तेरे वजूद में जज्ब हो जाए। लेकिन मेरे तो ऐसे कोई ख्वाब नहीं है। आपा, यह खातून मुझे बहुत तेज और होशियार लगती है। पहले ये यार आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें इतनी जहमत दी। इट्स ऑल राइट, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो ये समझ रहा था कि वो अपने घर में हंसी खुशी रह रही होगी। आपको अम्मी अब्बू का तो पता ही है, अगर कोई ऐसी बात होती तो बड़ा नुकसान हो जाता। नुकसान तो अभी कोई कम नहीं हुआ होगा यार। पता नहीं अम्मी जान मेरे बारे में क्या क्या सोच रही होंगी। मैंने लाहौर इसलिए आप ही को भेज दिया था कि वो सफिया खाला के पास जाए और वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगी। यार तुम्हें पता तो है कि अब्बा जान बात को संवारने के बजाय बिगाड़ने में कितनी महारत रखते हैं। खालू जान और अब्बी जान अपनी आना, अपनी जिद, अपनी मर्जी पे सब कुछ कुर्बान कर देते। यार नौफल, शवार मेरी बीवी है। I don't know, जब तुम जरा बड़े हो जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जब किसी की दुनिया किसी के बगैर उजड़ जाती है तो कैसा लगता है। असल में दादी भी तो नहीं थी, वरना ये पेचीदगियां ना बढ़ती। खैर आओ खाना खाएं। लो भाई मुबारक हो, आजमाइश की घड़ी खत्म हो। वो कैसे माँ जी? वो लोग रिश्ता डाल गए हैं नबीला के लिए। सच माँ जी? हाँ बेटी, मुझे मालूम था। सौ नफल हो गए। खाना बहुत जबरदस्त था, सब तारीफ कर रहे थे। भाई हम सबकी मुश्तरका कोशिश जो थी जनाब। तफसीलात तो पहले ही तय हो चुकी हैं, वो तो सिर्फ नबीला को देखने आए थे। वो तुम्हारे अब्बा के ऑफिसर बरकी साहब, यूं लगता था जैसे वो उनको तैयार करके लाए। कह रहे थे आपा बहुत पसंद आई उन्हें, उनकी सादगी ने बहुत मुतासर किया। शुक्र है अल्लाह पाक तेरा। चलो उठो बेटा, बर्तन साफ करो। शाबाश शाबाश, चलो बर्तन धो। आप हम सारे दिन जीती रही अमीर भाई, अब बर्तन वगैरह आप धोएं। सफिया, शाबार को लेकर इधर आओ। अल्लाह खैर, हमारी कोई खुशी खालिस नहीं होती है। ये खालू जान क्यों बुला रहे हैं? ये बेटा तुम्हारे खालू ही धाड़ रहे हैं, बुला नहीं रहे, खाली धाड़ रहे हैं। ये उन्हीं को आदत है, कभी आहिस्ता से नहीं बात करेंगे। तुम्हारी आंखों में आंसू? एहसन भाई याद आ रहे, अगर आज वो होते तो। भाभी मत कहो मुझे सिर्फ अपनी बहन समझो। सफिया, सुना नहीं तुमने? सुन लिया है। चलिए खाला जान। आओ चल के देखते हैं। चलिए। बैठो। तुम यहां क्यों आई हो? तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? जी मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। कौन सा घर? मेरा सिर्फ एक घर है। हाँ, सफिया से मुझे कुछ बातों का पता चला है।
मगर मुझे इस पे ज्यादा एतमाद नहीं है, इसलिए मैं खुद। शेख साहब, आज खुशी का मौका है, आप इस बात को किसी और वक्त में छोड़। तुम खामोश रहो, समझिए आप? तुम अपनी मर्जी से ऐसा को छोड़कर आई हो। जब मैं अपनी मर्जी से उनके साथ गई ही नहीं थी, तो अपनी मर्जी से छोड़ना। सुन लो, बहुत खूब। तुम्हारा बाप तो बहुत पहुंच वाला आदमी है। मैं हर हाल में उनसे रिहाई चाहती थी और चाहती हूँ। शाबाश, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई ऐसा कदम उठाएंगे जो हम सबकी रुसवाई का सबब बनेगा। मेरा ख्याल था कि जब वो कोई ठंडे दिल से सोचेंगे तो अक्लमंदाना। अकल और एहसन। सुन ली अपने लाडले की करतूत? बड़ा फख्र था ना तुम्हें अपने शेर जवान बेटे पर। वो आपका भी बेटा है। अरे बेटा उसी का है जिसने उसे पाला, ताया का बेटा है वो। लानत है ऐसी औलाद पर जो सरेआम खानदान की इज्जत को सरेआम नीलाम कर दे। तुम अपने बाप के घर क्यों नहीं गई? मेरे अब्बू ने भी कह दिया था कि मैं उनके घर कदम नहीं रख सकती। बस वो पर्चा लिखने की वजह से बदगुमान हो गई। मेरे ख्याल और ख्वाब में भी नहीं था कि ऐसा में लिखे कागज का इस तरह फायदा उठाएंगे और पुलिस को ले आएंगे। अरे वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। मगर देखो ना, हम तुम्हें यहाँ नहीं रख सकते। बच्चियों के रिश्ते करने हैं, और फिर तुम्हारी माँ है ना, कोई भी मसला खड़ा कर सकती है। आखिर तुम उस नाखलफ का हवाला हो। तो आप ये हवाला खत्म कर दीजिए। हाय अल्लाह, खुदा ना करे बेटी, खुदा ना करे। ये हमारी बच्ची है, हम इसके बड़े हैं। हमारे लिए इसका अजाब हमारा अजाब है। ये हमारी बेटी है। मगर वो खुद उस नाअंजार के साथ रहने पर आमादा नहीं है। सुना नहीं तुमने? ये बच्ची है, अकल नहीं है इसे। अच्छा ये बच्ची है और तुम अफलातून हो। ये सब आग लगाई हुई है बड़ों की, और वो बड़े ही बुझाएंगे। मैं एहसन से बात करूंगी। वो तोता समझेगा। ये आग तुम्हारी भड़काई हुई है, उसकी पर्दापोशी कर करके। बड़ा नाज था ना अपने बेटे पर। अब आखिरी बात सुन लो, जो फैसला इस बच्ची का है वही फैसला मेरा है। खुदा कीजिए, रहम करें। कहाँ जाएगी तनहा मेरी बच्ची? ये अब भी एहसन की बीवी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ज्यादा बातों की जरूरत नहीं है। 4 दिन बाद वो लोग हाँ कहने आएंगे, तैयारी करो बस। कोई सुकून ही नहीं जिंदगी में। इससे तो बेहतर था वो ताया के घर में रहता, अजाब बनाकर इस घर पे ले आई। खलफ ना अंजार, आवारा। जाओ जाओ, मुझे भी सोना है। घबराना नहीं बेटी, जिंदगी में इम्तिहान आते हैं। अल्लाह तुम्हारी मुश्किलें आसान करे। मैं हूं ना, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। नबीला की शादी के बाद सोचेंगे क्या करना है, ठीक है? हेलो कब तक सामान देते हैं जिंदा रहने का? हो जाता है। तुम जिद मत करो, मान जाओ अम्मी की बात। आप ही आप समझिए ना, जब हम अपने अब्बू के लिए खुशी नहीं बन सकते तो हम उनके क्यों इर्द गिर्द चक्कर लगाएं, उनसे माफिया मांगे। तुम दोनों एक बात याद रखो, तुम्हारे अब्बू ने कभी भी मेरे किए की सजा तुम लोगों को नहीं दी। क्या? क्या मतलब? क्या आपके किए की सजा?
لیکن آپ نے... ضروری نہیں بیٹا کہ ہر بات اولاد سے کی جائے. ہو سکتا ہے مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو. جی نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. امی آپ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی, آپ تو اتنی گریٹ ہیں. بحث نہیں کرو. تمہارے باپ نے تم لوگوں کو ساری خوشیاں دی ہیں, وقت نکالا ہے تم لوگوں کے لیے, تمہاری ہر خواہش پوری کی ہے, تمہاری بیماری اور تمہاری تکلیف میں راتیں آنکھوں میں بسر کی ہے. تم لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ان کی خوشیوں کا خیال رکھو. امی بعض فرائض بہت سارے لوگ انجام نہیں دے پاتے. بہت سارے لوگ نماز بھی تو نہیں پڑھتے, حالانکہ وہ... آپ میں تو اتنا تحمل ہے, اتنا سکون ہے. آپ سے تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. آپ تو اتنی مظلوم سی ہیں. تمہارے ابو تم دونوں کو بہت چاہتے ہیں. ماں باپ کے آپس میں کیا مسائل ہے, کون مظلوم ہے اور کون ظالم, اس سے بچوں کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. تم اٹھو اور تم نے اپنے ابو سے جو بدتمیزی کی ہے اس کی معافی مانگو, بلکہ اس سے پہلے تم شکیلہ سے معافی مانگو. اٹھو ورنہ میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی. بیلو, ضد مت کرو, امی کا حکم مان. ابھی تو ان کی طبیعت سنبھلی اور تم انہیں ہرٹ کیے جا رہے ہو. ٹھیک ہے, لیکن میں صرف ابو سے معافی مانگوں گا. فی الحال یہی صحیح.